एडेनॉइड की बात करें तो एडेनॉइड इज द लिम्फेटिक टिश्यू विच प्रेजेंट इन द नासोफैरिंक्स। यदि हम लोग बात करें, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द एडेनॉइड, दिस इज द नासोफैरिंक्स, दिस इज द फेरिंक्स। फेरिंक्स हैज थ्री पार्ट, दिस इज नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स। यदि हम लोग बात करें, दिस इज द टर्मिनेट ऑफ द नोज नाजल वेस्टिबुलाई, ठीक है, कौन का। यदि हम लोग इसकी बात करें तो एडेनॉइड की एनाटॉमिकल पोजीशन, तो पहले तो जो तो फेरिंक्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल द फेरिंक्स, फेरिंक्स हैज थ्री पार्ट, नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स। एडेनॉइड लोकेटेड इन द नासोफैरिंक्स। नासोफैरिंक्स की हम लोग बात करें तो नासोफैरिंक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्फिनॉइड एंड नासोफैरिंक्स टिल द soft palate, till the soft palate. Nasopharynx को ये nasopharynx is originated from the basis spinae till the soft palate. This is the nasopharynx. यदि हम लोग पोजीशन की बात करें, what is the position of the adenoid? Adenoid present in the this is the posterior wall of the nasopharynx, and this is the this is the roof of the nasopharynx. Adenoid present in the posterior wall of nasopharynx and floor of nasopharynx. Roof of nasopharynx. Adenoid located in the posterior wall of the nasopharynx and the roof of the nasopharynx. This is the anatomical position of adenoid. यदि हम लोग बात करें what is the function of adenoid, function of adenoid. Adenoid is similar to the tonsil, which tonsil located in the oropharynx and adenoid located in the nasopharynx. What is the function of adenoid? Adenoid has lymphatic tissue, means provide the local immunity due to production of IgG, IgM and IgA. इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से नासोफैरिंक्स में इम्यूनिटी बनी रहती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ एडेनॉइड लिम्फेटिक टिश्यू. हम लोग बात करें एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी की. व्हाट इज द कॉज ऑफ एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी? कॉज ऑफ एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी. First, before discussing the cause of adenoid hypertrophy, we see about the adenoid and the difference between the adenoid and tonsil. यदि हम लोग बात करें तो adenoid is located in the nasopharynx and tonsil is located in here oropharynx. Oropharynx both are the lymphatic tissue. What is the difference between the adenoid and the tonsil? First, adenoid is present in the nasopharynx, or this is present in the oropharynx. Second, adenoid is single in number. और ये क्या होता है? पेयर्ड पाया जाता है. थर्ड, एडेनॉइड की हम लोग बात करें तो एडेनॉइड जो होता बना होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. यहीं पे जो होता है टॉन्सिल बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की. थर्ड, ये हम लोग बात करें तो इसमें जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है टॉन्सिल में ड्यू टू क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल में. इसमें क्रिप्ट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होता है. फिर एडेनॉइड इज नॉन मेम्ब्रेनस बट टॉन्सिल इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. फरो present in the adenoid and furrow absent in tonsil. इसकी जगह क्या पाया जाता है? इसमें क्रिप्ट्स.
and tonsil keep on the table. So how to recognize that this is the adenoid and this is the tonsil due to presence of furrow. Longitudinal furrow present only in the adenoid tissue, but tonsil has the crypts, not furrow. This is the difference between the adenoids and tonsil. Now discuss about the causes of hypertrophy, adenoid hypertrophy. यदि हम लोग कॉजेस की बात करें एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी के कॉज क्या क्या हैं तो सिंपल फर्स्ट इज एलर्जी द टर्म इज एटोपी एटोपी इज कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ द एलर्जी इन विच पर्सन सफर फ्रॉम द एलर्जी डिजीज सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही जब पेशेंट जो होता है वो हर चीज से उसको एलर्जी होती है स्टमक में प्रॉब्लम स्किन जैसे प्रॉब्लम बार बार जो होता है repeated adenoid hypertrophy tonsillitis this तरह के phenomena उसको हर चीज से एलर्जी होती रहती है this is the atopy is commonly found in the adenoid hypertrophy second DNS deviated nervous septum also cause the adenoid hypertrophy third chronic rhinosinusitis CRS chronic rhinosinusitis also create the adenoid hypertrophy third nasal polyp also create the adenoid hypertrophy. Fifth is rhinitis. Repeated rhinitis also the result of also may cause the adenoid hypertrophy. This is the cause of hypertrophy. What is the symptom of adenoid hypertrophy? ये हम लोग symptom की बात करें यानी एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी अब सिंपल सा ये हम लोग देखें दिस इज द एडेनॉइड ये इसकी साइज बढ़ जाती है ऐसे हाइपरट्रॉफी इसमें हो जाती दिस कवर द नोजल पाथवे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दिस कॉज द नोजल ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा माउथ ब्रीथिंग also three structures present in the nasopharynx first opening of eustachian tube lateral wall of the nasopharynx has the opening of eustachian tube second nasal opening of the eustachian tube second also present torus tuberous. These three structures also present in the nasopharynx, lateral wall of the nasopharynx. Opening of the eustachian tube. जब पार्वेस की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो ओपनिंग ऑफ eustachian tube का हम्पर्ट होने लगेगा मतलब दिस इज इसमें जो था चेक eustachian tube की ओपनिंग ब्लॉकेज हो जाएगी ओपनिंग ब्लॉकेज होने की वजह से eustachian tube कहाँ पे ओपन होता है ये हम लोग बात करें मैलस इनकस स्टेपिस तो यहाँ पे ये कॉक्लिया सेमिसिकल तो ये होता है eustachian tube जब ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से मिडिल ईयर में जो होता है क्या होने लगेगा मिडिल ईयर में जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा विच कॉज द ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लू ईयर दिस इज द कॉमन सिम्टम ऑफ द एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी और ये सारी चीजें जब होने लगी तो लास्ट में क्या हो जाता है एडेनॉइड फेसिस एडेनॉइड फेसिस का क्या मतलब होता है चेहरे में ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं जिसको एडेनॉइड फेसिस कहते हैं हम लोग बात करें एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी की तो एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी मेनली पाया जाता है 3 to 7 इयर्स के ओल्ड बच्चे में पाया जाता है 3 से 7 साल के बच्चों में पाया जाता है एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी तो एडेनॉइड फेसिस में क्या होता है फेसिस मतलब चेहरे में ऐसी क्या चेंजिंग आ जाती है एडेनॉइड फेसिस जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग फेस हो जाएगा उसका लॉन्ग फेस हो जाएगा सेकंड माउथ ब्रीदिंग करेगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थर्ड डेंटल एनामलीज आएगी उसमें आगे की जो होता है आपका इंसाइजर लॉन्ग हो जाएगा उसका इंसाइजर लॉन्ग हो जाएगा यदि हम लोग फरो की बात करें पैलेट का फरो पैलेट कर्व जो होता है मोर कर्व हो जाएगा
ये जो पैलेट है मोर कर्व होगा, ओपन माउथ होगा, उसका जो होता है लॉन्ग फेस हो जाएगा, डेंटल एनामलीज आ जाएगी, इंसेजर जो होती है इसकी लॉन्ग हो जाएगी, उसके साथ साथ इसमें ठीक है पैलेट जो होता है कर्व हो जाएगा, इंसाइजर लॉन्ग हो जाएगा। हाँ उसके बाद उसका नाक भी जो होता है पिंच्ड नोज हो जाएगा, नाक उसका ऐसे धसा धसा होगा। दिस इज द साइन सिम्टम ऑफ द एडिनॉइड फेसिस। यदि हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यदि हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो कंजर्वेटिवली यदि हम लोग इसको मैनेज करना, तो कंजर्वेटिवली जो होता है इसमें हम लोग क्या देते हैं, एलर्जी हो रही है तो एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है एंटीहिस्टामिनिक जो भी तो फेक्सोपेटाइटिस लिपोसिटिक ये सारी चीजें देते हैं। उसके बाद स्टेरॉइड, बार बार रिपीट हो रहा है, राइनाइटिस वगैरह हो रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, और ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, नाजुल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, स्लीप अपनिया कर दिया, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी, जिसको क्या कहते हैं एडिनोइडेक्टॉमी। सर्जरी क्या करेंगे, एडिनोइडेक्टॉमी करेंगे। इसमें एंडोस्कोपिक एडिनोइडेक्टॉमी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस अबाउट द step of the adenoidectomy and estimate use in the adenoidectomy. This is all about the